અત્રે ઉપસ્થિત તમામ ગ્રામજનો, વાલીઓ, ટ્રસ્ટીગણ તેમજ શિક્ષકો તેમજ મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના દિન તમારા માટે શુભ રહે એવી અમારા શાળા પરિવાર તરફથી શુભ કામનાઓ। હવે આપણા કાર્યક્રમની શરૂઆત સૌપ્રથમ આપણે કલામી પાકની તિલાવતથી કરીશું। તો કિરાત માટે હું વિનંતી કરીશ ધોરણે યુસુફને કે તે સ્ટેજ પર આવી અને કલામી પાકની શરૂઆત કરશે। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। माशाअल्लाह, खूब सरस। कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। હવે હિન્દુસ્તાન જે આપણો દેશ છે એ દેશને લગતું એક નજમ લઈને આવી રહ્યો છે। ધોરણ 5 નો વિદ્યાર્થી જેના બોલ છે હમ વફાદાર તેરે હે હિન્દુસ્તાન। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वफादार तेरे हिंदुस्तान, हम हकदार तेरे हिंदुस्तान, हम वफादार तेरे हिंदुस्तान, हम हकदार तेरे हिंदुस्तान। बनके टीपू कहीं गोली खाए भी हम, बनके कासिम लहू से नहाए भी हम, बनके महमूद जेलों में आए भी हम, बनके अशफाक ये जाल उठाए भी हम। हमने
हम पे तेरे मरहम बने हम सदा, हम ही गमख्वार तेरे हिंदुस्ता, हम वफादार तेरे हिंदुस्ता, हम ही अक़दार तेरे हिंदुस्ता, हम ही हमदर्द और तेरे हमनवा, तू हमारा चमन हम तेरे मक़बा, तू हमारा मलक हम तेरे कहकशा, हम ही जअफर तेरे असलम पासबा, ना के गद्दार तेरे हिंदुस्ता, हम वफादार तेरे हिंदुस्ता, हम ही अक़दार तेरे हिंदुस्ता। માશાઅલ્લાહ, ખૂબ સરસ. જોરદાર ક્લેપિંગ થઈ જાય. ખૂબ વન્ડરફુલ વોઇસ ફોર હસન. ખૂબ સરસ વિદ્યાર્થીએ પોતાના અવાજમાં આપણને નજમ સંભળાવી. હવે નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ માટે હું વિનંતી કરીશ કે આજનો દિન આપણા માટે શુભ છે. એ દિવસ માટે આજે 26મી જાન્યુઆરીની સ્પીચ લઈને ધોરણ 8ની બાળા આવી રહી છે સ્ટેજ પર. અહીં ઉપસ્થિત મારા આદરણીય મહેમાનગણ, આચાર્યશ્રી, શિક્ષકગણ અને મારા પ્રિય વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું પ્રજાસત્તાક દિન વિશે બે શબ્દો કહેવા માંગુ છું, જે શાંતિથી સાંભળવા વિનંતી. 26 જાન્યુઆરી એ આપણો રાષ્ટ્રીય તહેવાર છે. 15 ઓગસ્ટ 1947 ના રોજ આપણો દેશ આઝાદ થયો. ત્યારબાદ દેશનું બંધારણ ઘડવા માટે બંધારણ સમિતિની રચના કરવામાં આવી. તેના અધ્યક્ષ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર હતા. આ બંધારણ 26 જાન્યુઆરી 1950 ના રોજ અમલમાં આવ્યું. આ દિવસથી ભારત સાર્વભૌમ પ્રજાસત્તાક બન્યું. ત્યારથી દર વર્ષે આ દિવસ રાષ્ટ્રીય તહેવાર તરીકે ઉજવાય છે. 26 જાન્યુઆરીના દિવસે સવારે શાળાઓમાં અને સરકારી કચેરીઓમાં ધ્વજવંદન કરવામાં આવે છે. દિલ્હીમાં લશ્કરી વાહનો સાથે લશ્કરની ત્રણેય પાંખોની પરેડ થાય છે. તેની સાથે જુદા જુદા રાજ્યોની વિકાસની તેમજ સાંસ્કૃતિક સાંખ્યો પણ બતાવવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રપતિ તેની સલામી ઝીલે છે. શાળાઓમાં અને સોસાયટીઓમાં કાર્યક્રમો યોજાય છે. રેડિયો અને ટીવી પર દેશભક્તિના ગીતો અને કાર્યક્રમો રજૂ કરવામાં આવે છે. સાંજે સરકારી મકાનો રોશનીથી ઝળહળી ઉઠે છે. કેટલાક લોકો પણ પોતાના મકાનો પર રોશની કરે છે. પ્રજાસત્તાક દિન રાષ્ટ્રીય ભાવનાની પ્રેરણા આપતો તહેવાર છે. આભાર. ખૂબ સરસ. આજે આપણને 26મી જાન્યુઆરી એ આપણો રાષ્ટ્રીય તહેવાર છે. એ તહેવારને આપણે સેલિબ્રેટ કરવો જોઈએ અને એ આપણો રાષ્ટ્રીય તહેવાર છે એટલા માટે જ આપણે એને ધૂમધામથી સેલિબ્રેટ કરવો જોઈએ અને એમાં પાર્ટિસિપેટ પણ થવું જોઈએ. હવે પ્રોગ્રામને આગળ વધારતા, તડપતા હે કોઈ બચ્ચા તો माँ का दम निकलता है, तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है. कि पढ़ के देखो किताबे हस्ती में, कि पढ़ के देखो किताबे हस्ती में, माँ से और प्यारा कोई नाम न होगा. कि पढ़ के देखो किताबे हस्ती में, माँ से प्यारा कोई और नाम न होगा. जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर के मकाम क्या होगा. तो હવે મા બાપને લગત નજમ જેના બોલ છે મા બાપ નહીં મિલતે દોબારા. તો વિદ્યાર્થીઓથી રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર આવી અને પોતાનું પરફોર્મન્સ રજૂ કરશે.
जय श्री प्यारा वतन जय श्री करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा माँ बाप नहीं मिलते दुनिया में दोबारा करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा माँ बाप नहीं मिलते दुनिया में दोबारा उंगली पकड़ के जिसने तुम्हें चलना सिखाया तकलीफ झेल झेल के परवान चढ़ाया रोना तेरा रोना तेरा एक पल भी इन्हें था न गवारा रोना तेरा एक पल भी इन्हें था न गवारा करना नहीं नाराज कभी इनको गुजारा माँ बाप नहीं मिलते दुनिया में दोबारा माँ बाप जिंदा तो करो इनकी गुलामी हर सुबह शाम प्यार से दो इनको सलामी आज इनका आज इनका बुढ़ापा है तो कल होगा तुम्हारा आज इनका बुढ़ापा है तो कल होगा तुम्हारा करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा नहीं मिलते दुनिया में दोबारा हुक्म खुदा माँ बाप को उफ तक भी न कहना वरना जो आलाम पड़ेंगे तुम्हें सहना रब की ना रब की न मान कैसे भला होगा गुजारा रब की न मान कैसे भला होगा गुजारा माँ बाप की रजा को या अल्लाह की रजा है नाराजगी नाराजगी से इनकी बड़ा होगा बसारा नाराजगी से इनकी बड़ा होगा बसारा वरना दस औलाद से होगी बड़ी जिल्लत नादिम वली नादिम वली काटोगे जो बोया है तुम्हारा नादिम वली काटोगे जो बोया है तुम्हारा
ખૂબ સરસ. તાળીઓ પાડો, હવે કંજુસાઈ કરો બેટા. ખૂબ સરસ. વિદ્યાર્થીઓએ આપણને જોરદાર સંદેશ આપ્યો છે કે મા બાપ નહીં નીકળે જો બાળક. એટલે આ જે હસ્તી એ જીવનમાં એક જ વાર મળે છે, બીજી વાર મળતી નથી. તો જેના પણ મા બાપ જીવે છે એમની ખૂબ કદર કરે, એમની ઇજ્જત કરે. ઘણું બધું આપણને આ નજરમાં સાંભળવા મળ્યું કે તમારે જો ઇજ્જત કમાવી હોય તો તમારે તમારા મા બાપની ખાલી ઇજ્જત કરશો તો લોકો તમારી ઇજ્જત કરશે. કોઈ ડિગ્રીની જરૂર નથી, ફક્ત આપણા મા બાપના તમે ઇજ્જતથી, રિસ્પેક્ટથી, પ્રેમથી એમને રાખશો એટલું આપણા માટે ઇનફ છે ભાઈ. દુનિયા અને આખિરત બંને આપણી કામયાબ થઈ જશે. તો દરેક અહીંયા ઉપસ્થિત બધાને હું રિક્વેસ્ટ કરું છું કે પોતપોતાના મા બાપની બહુ ઇજ્જત, એમને ખૂબ પ્રેમથી, રિસ્પેક્ટથી, એમનાથી કોઈ ભૂલ પણ થતી હોય તો એમના કોઈ ટોર્ચર ના કરે, પણ એમનાથી પ્રેમથી રહે અને ખૂબ એમના સાથ આપે. હવે જેની લોકો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, જેની લોકો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે એવું રમૂજી નાટક લઈને આવી રહ્યા છે જેના બોલ છે ચમન માસ્તર. તો ચમન માસ્તર, come to stage and start your drama. ચમન માસ્તર, come with team and start your drama. તો વિદ્યાર્થીને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તાળીઓના ગડગડાટ સાથે જોરદાર તાળી દઈએ ભાઈ.
આવી જા. આવરે વરસદ દેવારે વરસદ ઉરિયોની રોટલી કારે લાલે શાક કાલે શાકવાની બીજોની મેલું શાદી માં તો કોણ બોલાવશે હું સાહેબ આવી જા. સાહેબ તમારો દંડો આવી ગયો. ભાઈ દંડો શું કોમે લે સાહેબ તમે આજો શું કોમે લે દંડો સાહેબ મારી પ્રાર્થના કરી છે એટલે દંડાવાળી પ્રાર્થના કરવા દે છે સાહેબ તમે હાલો લે. मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा भैंस वाली एटू जोड़ी की बेलू बे शादी में तो कौन बोलावશે આવી જા. हाजर बम आंखों बंद. इतनी शक्ति हमें दे दाता मन का विश्वास आदि सादी प्रार्थना. હવે હું હાજરી પૂરીશ બધા લે હાજરીમાં. नंबर 1 पुष्पा. पुष्पा पुष्पराज झुकेगा नहीं साला. अरे लेशन मारते थे ओपू तो लाडला इनको तो पुष्पा झुकेगा नहीं साला. एटू जो रोल नंबर 2 साहेब आजारू. रोल नंबर 3 आजादी. अरे देश आजाद को डिप्टी एटू जो रोल नंबर 4 पलड़ो साहेब आजारू. रोल नंबर 5 कलड़ो गैर आदि से. रोल नंबर 6 पूरो छोटा पैकेट बड़ा धमाका. रोल नंबर अरे परीक्षा में तो सुरसुर થઈ જાય છે એટલે. रोल नंबर 7 साहेब आજો છું. रोल नंबर 8 छगन मगन साहेब का लगन अरे बाप रे लगन कर सिंगिया. रोल नंबर 9 आજો છું साहेब. સાહેબ આવી જા. એક તો મોડું મોડું આવે લગન આવી બેસી જુ પાછળ જા. અંદા પાછળ શું હે સાહેબ રોટો છે હિમુ શું હે રોટમ ખીર છે ચમલાઈ દવા માટે લાવ્યો તો લે લે ખીલાઈ જો કરનો જેટલો હોશિયાર મને ખીલાયો. તમે મારા માટે કોઈ વસ્તુ લાવો છો લે કરનો તો હોશિયારી તારે આગળ જ બેસવાનું. હા સાહેબ. અરે કરનો કે છે હવે લે. અરે સાહેબ તમે ઘી પીવો છો એટલે હું શું થઈ ગયું લે. એ સાહેબ કાલના ઘરે મહેમાન આવ્યા હતા. અરે મહેમાન તો બધું ઘેર આવ્યા લે. એ સાહેબ તો મારી મમ્મી ઘરે હતી કાલ કૂતરું આવ્યું આ રોડાની જોડે ખીર પીધી થોડી વધી હતી. મારી મમ્મી કે રાતને આવજે છે. અરે તારા પડશે. અરે તારા કાળા કૂતરાની ચાડે લગી અહીંયા મને પીડાય છે. હવે હું તમને જો જનરલ નોલેજના પ્રશ્ન પૂછીશ. એ ઉભો થા લે. શું છે તારું નામ શું છે? બોલ્યો છોકરો ભાઈ. મારા મમ્મી પપ્પા પાસેથી. તારા મમ્મી પપ્પા ક્યાં રહે છે? મારી પાસે. અરે ગધેડા તમે ત્રણેય જણા ક્યાં રહો છો? અમારા ઘરે. અરે તારું ઘર ચો છે? સલીમભાઈ દુકાન આગળ. અરે સલીમભાઈ દુકાન ક્યાં છે? મારા ઘર પાસે. અરે ગધેડા તું જો. હું તમને જનરલ નોલેજના પ્રશ્ન પૂછીશ. પ્રશ્ન નંબર 1 એવું કયું પક્ષી છે જે ઉડી શકતું નથી? હું બોલું બોલ. સાહેબ મરેલું. સાહેબ મરેલું પક્ષી. એટલે ગધેડા મરેલું પક્ષી ક્યાં રીતે ઉડે? સાહેબ તમે તો કીધું હતું. હું એમ નથી કીધું હું એમ કહું છું કે એવું કયું પક્ષી છે જે ઉડી શકતું નથી? એટું જો. પ્રશ્ન નંબર 2 નર્મદા નદી ક્યાંથી નીકળે છે? સાહેબ હું બોલું બોલ. સાહેબ નર્મદા નદી આ પરિણામ નામમાંથી નીકળે છે. એને તો શેલા કહેવાય. નર્મદા નદી અમરકંટક નામના પર્વતમાંથી નીકળે છે. તું જો. એ ચંદ્રકલ યસ સર. કેમ મોટું કહે છે? અરે કોનો દેવો ભાઈ આવ્યું છે? સાહેબ મારા બાપાનો. કેમ તારા બાપાનો? સાહેબ મારા બાપા ભૂલથી મારા પહેરી ગયા છે. ઠીક કાજી જાવ પહેરી આવજે. પ્રશ્ન નંબર 3 એવી
બુજાનું નહીં, આગ લગાડવાનું કામ છે. એટલે ગધેડા એટલું નથી આવતું, એટલું જો. પ્રશ્ન નંબર 4. સૂરજ ક્યાંથી ઉગે છે અને ક્યાં ડૂબે છે? હું બોલું સાહેબ? બોલ. સાહેબ, સૂર્યના પરુડાના સાપરામાંથી નીકળે છે અને મારા ઘર પાર થઈ ગોમના શેરીની અંદર હશે. એટલે ગધેડા એટલું નથી આવડતું. સૂર્ય પૂર્વ દિશામાં ઉગે છે અને પશ્ચિમ દિશામાં ડૂબે છે. એટલું જો, એટલું જો. પ્રશ્ન નંબર 5. સૌથી વધારે બટાકા ક્યાં જોવા મળે છે? સાહેબ બોલું? બોલ. સૌથી વધારે બટાકા સમોસામાં જોવા મળે છે. એટલે સમોસાની માસી એટલું જો, એટલું જો. હવે તું થઈ ગયું છે તો બધા ચૂપચાપ બેસો. અલે શુક્રવાર ટાઈમ થઈ ગયો, હવે તો ચૂપચાપ બેસ. ખૂબ સરસ વિદ્યાર્થી આપણને બહુ હસાડ્યા ભાઈ. એમના માટે ફરીથી એકવાર જોરદાર તાળી થઈ જાય. ખૂબ સરસ પરફોર્મન્સ કર્યું ચમન માસ્તરની ટીમે. ખૂબ સરસ. હવે કાર્યક્રમને આગળ વધારતા માશાઅલ્લાહ શિક્ષકો માટે ઇનામ મોહમ્મદ સઈદ ઇસ્માઇલભાઈ સિલિયા તરફથી 1000 રૂપિયા, ફરહાન જાબીરભાઈ સિલિયા તરફથી 1000 રૂપિયા, મૌલાના ફારૂક હનીફભાઈ ભોરેણા તરફથી 500 રૂપિયા, સોબાન સબ્બીરભાઈ સિલિયા તરફથી 250 રૂપિયા, અનીસભાઈ રફીકભાઈ સિલિયા તરફથી 250 રૂપિયા, ઇબ્જુર રહેમાનભાઈ અબ્બાસભાઈ સિલિયા તરફથી 300 રૂપિયા, સલીમભાઈ ઇકબાલભાઈ તરફથી 2000 રૂપિયા, રઈસભાઈ રફીકભાઈ તરફથી 150 રૂપિયા, રિયાઝભાઈ તરફથી 200 રૂપિયા, કાસમભાઈ તરફથી 250 રૂપિયા, મુસ્તકીમભાઈ તરફથી 100 રૂપિયા, મરહુમ ઇકબાલભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ તરફથી 5000 રૂપિયા, તોફીકભાઈ ઇસાકભાઈ માણેસિયા તરફથી 300 રૂપિયા, રહમતુલ્લાહભાઈ સેલિયા તરફથી 300 રૂપિયા, હારૂનભાઈ દાઉદભાઈ સેલિયા તરફથી 300 રૂપિયા. હવે બાળકો માટે ઇનામ આવેલું છે મોહમ્મદ સઈદભાઈ ઇસ્માઇલભાઈ તરફથી 500 રૂપિયા, મૌલાના ફરહાન જાબીરભાઈ સિલિયા તરફથી 1000 રૂપિયા, મૌલાના ફારૂક તરફથી 500 રૂપિયા, સોબાનભાઈ સબીરભાઈ તરફથી 250 રૂપિયા, અનીસભાઈ રફીકભાઈ તરફથી 250 રૂપિયા, સલીમભાઈ ઇકબાલભાઈ તરફથી 2000 રૂપિયા, રઈસભાઈ રફીકભાઈ તરફથી 200 રૂપિયા, અનીસભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ તરફથી 200 રૂપિયા, રિયાઝભાઈ તરફથી 200 રૂપિયા, જાવેદભાઈ મુફી તરફથી 500 રૂપિયા, કાસમભાઈ ભોરણિયા તરફથી 250 રૂપિયા, તાહિરભાઈ તરફથી 200 રૂપિયા, મુસ્તકીમભાઈ તરફથી 100 રૂપિયા, તોફીકભાઈ ઇસાકભાઈ તરફથી 300 રૂપિયા, રહમતુલ્લાહભાઈ ગુલામ રસૂલભાઈ સેલિયા તરફથી 200 રૂપિયા. જે ભાઈઓએ ઇનામ આપ્યું છે એમની અલ્લાહ પાક એમની બરકતમાં એમની રોજીમાં ખૂબ ખૂબ તરક્કી કરે અને હંમેશા આ રીતે બાળકોને પ્રોત્સાહન આપવામાં એમની મોટિવેશન માટે અને એમનો પ્રોત્સાહન વધારવા માટે જે પણ ઇનામ અહીંયા આપેલું છે એમને અલ્લાહ પાક દુનિયા અને આખિરતમાં બંને કામયાબ કરે. ફરીથી શિક્ષકો માટે ઇનામ આવેલું છે. એક બહેન તરફથી 50 રૂપિયા છે, એક બીજા બહેન તરફથી 50 રૂપિયા, બીજા એક બહેન તરફથી 200 રૂપિયા, બીજા એક બહેન એમના તરફથી 150 રૂપિયા. બાળકો માટે ઇનામ આવેલું છે. એક બહેન તરફથી 100 રૂપિયા, બીજા એક બહેન તરફથી 100 રૂપિયા, બીજા એક બહેન તરફથી 50 રૂપિયા, બીજા એક બહેન તરફથી 50 રૂપિયા, બીજા એક બહેન તરફથી 50 રૂપિયા, આરીફભાઈ ગુલામભાઈ રસૂલભાઈ તરફથી 500 રૂપિયા, એક બહેન તરફથી 300 રૂપિયા, ઝુબેરભાઈ ઇકબાલભાઈ સેલિયા તરફથી 50 રૂપિયા, એક બહેન તરફથી 100 રૂપિયા, એક બહેન તરફથી 50 રૂપિયા, એક બહેન તરફથી 100 રૂપિયા, બીજા એક બહેન તરફથી 100 રૂપિયા, બીજા એક બહેન તરફથી 50 રૂપિયા, બીજા એક બહેન તરફથી 50 રૂપિયા, બીજા એક બહેન તરફથી 150 રૂપિયા, બીજા એક બહેન તરફથી 100 રૂપિયા, બીજા એક બહેન તરફથી 100 રૂપિયા, બીજા એક બહેન તરફથી 200 રૂપિયા. અલ્લાહ પાક એમની બરકત
खूब खूब धन्यवाद। હવે કાર્યક્રમની શરૂઆત થઈ જવા जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, ताली वो बजाता है जिसके हाथों में दम होता है। तो जोरदार ताली થઈ જાય ભાઈ, જેના હાથમાં દમ હોય જોરદાર તાળી વગાડે ભાઈ। ખૂબ સરસ। હવે દેશભક્તિ ગીત લઈને આવી રહ્યા છે નાના નાના ભૂલકાઓ, જેમની આતુરતાથી હું રાહ જોઈ રહ્યો છું। તો હું એમને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર આવશે, જેના બોલ છે હમ કદમ હમ વતન। दोस्तों अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों, ढूंढ लेंगे हमें साजहां दोस्तों, होगी राहे अमल कुरअमा दोस्तों, हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों, ढूंढ लेंगे हमें साजहां दोस्तों, होगी राहे अमल कुरअमा दोस्तों। मेरे जज्बों में कासिम की ललकार है, मेरी कुव्वत भी टीपू की तलवार है, मेरे जज्बों में कासिम की ललकार है, मेरी कुव्वत भी टीपू की तलवार है, मेरी हर सांस कर्ज़े अज़ां दोस्तों, मेरी हर सांस कर्ज़े अज़ां दोस्तों, हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों, ढूंढ लेंगे हमें साजहां दोस्तों, होगी राहे अमल कुरअमा दोस्तों। मेरी नस्ल नस्ल में कलमा है ईमान का, हम पे हर लम्हा साया है कुरान का, मेरी नस्ल नस्ल में कलमा है ईमान का, हम पे हर लम्हा साया है कुरान का, हासिले इल्म हो बेकरार दोस्तों, हासिले इल्म हो बेकरार दोस्तों, हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों, ढूंढ लेंगे हमें साजहां दोस्तों, होगी राहे अमल कुरअमा दोस्तों। तोड़ लाएंगे हम चांद तारों को भी, होगी जब साथ में इल्म की रोशनी, तोड़ लाएंगे हम चांद तारों को भी, होगी जब साथ में इल्म की रोशनी, तुम न करना ये वक्त ज़िया दोस्तों, तुम न करना ये वक्त ज़िया दोस्तों, हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों,
ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों। आसमानों तलक मेरी परवाज है, पर्वतों पर मेरे हक की आवाज है। आसमानों तलक मेरी परवाज है, पर्वतों पर मेरे हक की आवाज है। हम सितारों के हैं राज़दार दोस्तों, हम सितारों के हैं राज़दार दोस्तों। हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों। ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों। इल्म की राह का अब सफर है शुरू, खत्म न होगी कभी इनकलाबे जुनू। इल्म की राह का अब सफर है शुरू, खत्म न होगी कभी इनकलाबे जुनू। कश्तिए इल्म के बाद दोस्तों, कश्तिए इल्म के बाद दोस्तों। हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों। ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों। हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों। ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों। हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों। ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों। જોરદાર બાળકોએ મસ્ત પ્રોગ્રામ કર્યો હોય. હવે પ્રોગ્રામને આગળ વધારતા आज का ये अवसर बड़ा निराला है, आज का ये अवसर बड़ा निराला है, आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ पे नूर बरसने वाला है, आज यहाँ पे नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दो, यहाँ छोटे छोटे बच्चों की कवाली होने वाली है। तर તાળીના સાથે આવી રહ્યા છે નાના નાના ભૂલકાઓ કવાલી. જોરદાર તાળી દઈએ ભાઈ. बच्चे हैं हम, बड़ों की बातें क्या जाने। हम बच्चे हैं हम, बड़ों की बातें क्या जाने। हम बच्चे हैं हम, बड़ों की बातें क्या जाने। हम खेलते कूदते रहते हैं,
खूब सरस नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे किया बच्चों ने। तो બધા વાલીઓથી રિક્વેસ્ટ છે કે ભાઈ ફૂલના ને ફૂલની પોખડી આ બાળકોને ઇનામમાં મોટિવેટ માટે આપે, કારણ કે એમની હિંમત અફઝાઈ રહે અને અવારનવાર આવા કાર્યક્રમો એ લોકો પાર્ટિસિપેટ થતા રહે। તો બધા વાલીઓથી ગુજારિશ છે કે ફૂલના ને ફૂલની પોખડી બાળકો માટે કંઈક ના કંઈક એમના ઇનામ આપતા રહે।
मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा, मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा। यह मुल्क मेरी जान है, यह मुल्क मेरी जान है। इसकी रक्षा के लिए मेरा दिल और मेरी जान कुर्बान है। એવું એક દેશભક્તિ ગીત લઈને આવી રહી છે ધોરણ 7 અને 8ની બાળાઓ, જેના બોલ છે મેરા વતન વહી હૈ। તો હું રિક્વેસ્ટ કરીશ વિદ્યાર્થીનીઓને प्यारा वतन, प्यारा वतन, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। चिश्ती ने जिस ज़मीन में पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाज़ियों से दश्ते अरब छुड़ाया। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, सारे जहां को जिसने इल्म हुनर दिया था, मिट्टी को जिसकी हक़ ने सर का सर दिया था, तुर्कों का जिसने दामन हीरों से भर दिया था। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। टूटे थे जो सितारे फारस के आसमां से, सामने के जिसने चमकार कहकशां से, वहदत की ले सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। बंदे कलीम जिसके पर्वत जहाँ के सीना, नूर नबी ठाकर ठहरा जहाँ सफीना, रिफ़त जिस ज़मीं की जन्नत की है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मेरा वतन मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही
मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। માશાઅલ્લાહ, મસ્ત પરફોર્મન્સ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા આપણને જોવા મળ્યું. હવે આજના 26મી જાન્યુઆરી દિન નિમિત્તે અત્રે ઉપસ્થિત તમામ વાલીઓ તેમજ બહાર ગામથી આવેલા ભાઈ દરેકને એ વિનંતી કરીશ કે બાળકો માટે કંઈક ને કંઈક ફૂલની પોકળી આપતા રહે. પછી પાછળથી અફસોસ થાય કે થોડા આપ્યા હોત તો સારું હતું, એટલે લઈને આવ્યા તો છે બધા, તો આપીને જાય. એનાથી બાળકોની હિંમત અફજાય છે, કારણ કે અમને એનો ઘણો અનુભવ જોવા મળ્યો છે. તો ફૂલની પકડી બાળકો માટે કંઈક ને કંઈક તમે આપતા જજો. હવે અત્રે ઉપસ્થિત મુફ્તી ઇમરાન સાહેબ, જે અમારા આજના મુખ્ય મહેમાન તો પણ ખરા, એમને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર આવી અને એજ્યુકેશનનું શું મહત્ત્વ છે, આજના દોરમાં એજ્યુકેશન કેટલું મહત્ત્વ છે એના વિશે એ આપણને એમના શબ્દોમાં 2-3 વાક્યો કહેશે. તો આપ સૌને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે ઇમરાન મુફ્તી સાહેબને આપણે ખૂબ સાંભળીએ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। यहाँ पर मौजूद गांव के तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, प्यारी माओं और बहनों, ये बात हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 2 दिनों को बड़ी अहमियत हासिल है। उनमें से एक 15 अगस्त है और दूसरा 26 जनवरी है। और इन 2 दिनों को जो अहमियत हासिल है और उनको पूरे मुल्क के अंदर एक कौमी तातील के तौर पर मनाया जाता है, उसकी वजह यह है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। और 26 जनवरी को जो मनाया जाता है, उसकी वजह यह है कि हमारा मुल्क 26 जनवरी 1950 के अंदर हमारे मुल्क में अपना दस्तूर और आईन नाफिज किया गया। 1947 के बाद हमारे मुल्क का आईन और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क़ियादत और सदारत में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने मुसलसल 3 साल की मेहनत के बाद हमारे मुल्क का दस्तूर तैयार किया और उस दस्तूर को 26 जनवरी 1950 में हमारे मुल्क के अंदर नाफिज किया गया। मुझे आज जिस मौजू पर बात करनी है वो यौम आज़ादी या यौम जमहूरिया नहीं है, बल्कि मुझे जो मौजू दिया गया है वो तालीम और एजुकेशन की अहमियत और इफादियत है। सबसे पहले मैं जिन बच्चों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस किया, जिन बच्चों ने अपनी सलाहियतों और इस्तेदादों का मुजाहरा किया, और उनके वालियों, उनके टीचर्स और इसी तरह हमारा स्कूल कमेटी और जो ट्रस्ट है, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। किसी भी आदमी के तैयार होने में एक आदमी का हाथ नहीं होता है, बल्कि पूरा टीम वर्क होता है। उसके पीछे पूरी एक टीम की मेहनत होती है। तो इन बच्चों की तैयारी के अंदर भी बच्चे, उनके वाली, उनके टीचर्स और हमारी जो स्कूल कमेटी है, इन सब की मेहनतों का ये नतीजा
और ये समारा हमें आज देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात कि मैं मरहूम मौलाना इनायतुल्लाह साहब उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद करे कि उनकी मेहनत का नतीजा ये हम आज देख रहे हैं कि उन्होंने मेहनत करके हमारी एक अलग से प्राइवेट स्कूल की बुनियाद रखी। ये उनकी मेहनत, कोशिश और काविश का ये नतीजा है। अल्लाह ताला उनको हम सब की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से बेहतरीन अजर नसीब फरमाए। और हमारी जो स्कूल की टीचर्स की टीम है, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी मेहनतों का नतीजा है कि हमारे गांव का तालीम और एजुकेशन का लेवल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेयारी है। अभी भी उसके पीछे मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन जो कुछ है ये इलाके के हिसाब से और हमारे पूरे तालुका के हिसाब से ये अल्हम्दुलिल्लाह तालीम का लेवल बहुत अच्छा है। हमारे बच्चे जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं, हमारे बच्चे और बच्चियाँ आगे हाई स्कूल के अंदर तालीम हासिल करते हैं, तो वहाँ के टीचर्स और वहाँ के जो इंतज़ामिया होती है उनकी बातों से हमें ये बात जानने को मिलती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव का एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है। अब मैं तालीम और एजुकेशन की अहमियत पर कुछ बातें आपके सामने पेश करूंगा कि तालीम ये कौम और समाज की शहरत और रीढ़ की हड्डी होती है। इस्लाम से पहले, मजहब इस्लाम से पहले मुख्तलिफ कौमों और समाजों के अंदर औरतों को मीरास में हिस्सा नहीं दिया जाता था और उनका ख्याल ये था, उन लोगों का ख्याल ये था कि जो लोग दुश्मनों से पंजा आजमाई करते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं, उन्हीं को यह हक हासिल है कि वो मीरास में हिस्सेदार बने और ख़ानदान की अमलाक में हिस्सा उन्हीं को मिले। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं, आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आज तालीम ही वो बुनियादी सरचश्मा है कि जिससे कौमों को उरूज और तरक्की मिलती है। अगर कोई कौम की तादाद चाहे कितनी ही बड़ी हो, लेकिन अगर वो कौम तालीम से आली और महरूम है तो उसकी हैसियत एक मिट्टी के ढेर की तरह है कि जिसे हमेशा कदमों के तले रौंदा जाता है और कदमों के नीचे बिछाया जाता है। तो तालीम ये हमारे समाज की शहरत और रीढ़ की हड्डी है। अब उसकी एक मिसाल ले लीजिए कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान है कि जो आबादी के एतबार से, पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरे नंबर पर है और उसका रकबा और एरिया भी बहुत वसी है। हमारे मुल्क के पास कुदरती वसाइल भी बहुत है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है। और एक दूसरा मुल्क है जापान। जापान ये बहुत छोटा मुल्क है, उसकी पॉपुलेशन और आबादी भी बहुत कम है, उसका रकबा और एरिया भी बहुत कम है, उसके पास कुदरती वसाइल भी इतने नहीं है जितने हमारे मुल्क को हासिल है। लेकिन उसने तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर वो तरक्की की है कि हमें उसके सामने दस्ते सवाल फैलाना पड़ता है। तो आज हालात बदल चुके हैं। कौमों की तरक्की और उरूज का मेयार तालीम और एजुकेशन है, इसलिए हमें तालीम पर जोर देने की ज़रूरत है। इस्लाम ने अपनी आमद के पहले दिन से ही तालीम और एजुकेशन पर जोर दिया है। आप कुरान का मुताला करें कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस समाज के अंदर, जिस कौम के अंदर भेजा गया, उस समाज के अंदर क्या खराबियाँ और क्या कमियाँ और क्या कोताहियाँ नहीं थी। हर किस्म की खराबियाँ उस समाज के अंदर मौजूद थी। एक खुदा को छोड़कर सैकड़ों देवी देवताओं को पूजा जाता था। ताकत की हुक्मरानी थी, हर ताकतवर कमजोर को दबाता था। फहाशियत और उरियानियत का रिवाज आम था। ऐसे समाज के अंदर अल्लाह ताला ने जो पहला पैगाम इंसानियत के नाम भेजा, हमें तो ये समझ में आता है कि वो पहला पैगाम तौहीद पर मुश्तमिल होना चाहिए, इसलिए कि यही इस्लाम का लुब्बे लुबाब और खुलासा है। या फिर वो पहला पैगाम जुल्म के खिलाफ और इंसाफ की तरगीब पर मुश्तमिल होना चाहिए, लेकिन वो पहला पैगाम
अल्लाह ताला ने जो कुरान करीम में नाजिल किया वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। यानी इस्लाम ने अपने पहले पैगाम के अंदर ही तालीम पर ही जोर दिया कि तुम पढ़ो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो। इससे हमें ये सबक मिलता है कि सबसे बुनियादी चीज़ तालीम है, और तालीम एक नूर और एक रोशनी है। अगर कोई मकान में, किसी मकान के अंदर तारीकी हो, अंधेरा हो, मकान बंद पड़ा हो, तो उस मकान के अंदर चोर और डाकू का दाखिल होना आसान है। उस मकान में सांप और बिच्छू भी रहते हैं, दूसरे कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। अगर हम उन सब का अलहदा अलहदा मुकाबला करें तो हमारे लिए उनका मुकाबला करना ये दुश्वार और मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम उस मकान के अंदर एक चिराग और रोशनी जला देवें तो इन सारी बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। इसलिए कि तारीकी और अंधेरा ही इसका सबब है कि उस मकान के अंदर ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसी तरह हमारी कौम और हमारी समाज के अंदर किस्म किस्म की बुराइयां हैं। अकाइद के हिसाब से, आमाल के हिसाब से, मामलात के हिसाब से, मुआशरत और अखलाक के हिसाब से हर किस्म की बुराइयां पाई जाती हैं। अगर हम तालीम और एजुकेशन को आम करें, इल्म को आम करें, तो इन सारी बुराइयों का इलाज हो जाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्की जिंदगी में हर किस्म की मुश्किलात होने के बावजूद सबसे पहले दारे अरकम की बुनियाद डाली। एक घर के अंदर सहाबाए किराम की तालीम और तरबियत का अमल अंजाम दिया जाता था। फिर उसके बाद हिजरत करके जब मदीना तशरीफ ले गए तो मदीना जाने के बाद आपके पास और सहाबाए किराम के पास कोई माकूल ताआम और क़ियाम का इंतज़ाम नहीं था। आपके पास अपना ज़ाती मकान नहीं था। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में आपने क़ियाम फरमाया था। सहाबाए किराम जो मक्का में अपना सब कुछ छोड़कर मदीना तशरीफ लाए थे, उनके पास भी ताआम और क़ियाम का इंतज़ाम नहीं था। लेकिन आपने सबसे पहले जो काम किया, मस्जिद नबी की बुनियाद डाली, और उसके बाद सुफ़ा जो एक सबसे पहला तालीमी और तरबियती मरकज़ था उसकी बुनियाद डाली। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गज़वे बद्र के अंदर जो दुश्मनों के 70 कैदी पकड़े गए, दुश्मनों के 70 कैदी पकड़े गए, उस वक्त मुसलमानों के पास ताआम और क़ियाम का कोई इंतज़ाम नहीं था। उनकी मईशत बहुत कमज़ोर थी। तो हमें ये समझ में आता है कि उन 70 कैदियों से फिदिया लिया जाए, उनके पास से माल लिया जाए और उनकी मईशत को सहारा दिया जाए। लेकिन आपने उनका फिदिया माल नहीं मुतय्यन किया, बल्कि उनका फिदिया ये मुकर्रर किया कि जो आदमी पढ़ना लिखना जानता है कि वो 10 आदमियों को पढ़ना लिखना सिखाए। ये चीज़ हमें इस बात का सबक देती है कि मुसलमान तालीम को अपना सबसे पहला मिशन मुतय्यन करे। मुसलमान अपना घर बार सब कुछ फूंक सकता है, लेकिन इल्म और तालीम और एजुकेशन को नहीं छोड़ सकता है। कुरान करीम के अंदर भी कई आयत है कि जो हमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाती है। सबसे पहली आयत और सबसे पहली वही जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, के कुरान की पहली वही हमें तालीम की तरफ तवज्जो दिलाती है। इसी तरह दूसरी आयत के अंदर है कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग तालीम और एजुकेशन वाले हैं और जो लोग जाहिल और अनपढ़ हैं, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। जिनके पास तालीम और एजुकेशन है उनका मकाम और उनका दर्जा बढ़ा हुआ है। दूसरी आयत के अंदर है वयरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि जिनके पास तालीम और एजुकेशन है अल्लाह ताला उनके मकाम और दर्जात को बढ़ाते हैं। सूरह रहमान के अंदर, जिस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें और एहसानात को शुमार करवाया है, उनमें दूसरे नंबर पे उसमें ये आयत है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। अल्लाह ताला ने
इल्म को, तालीम को अपने एहसान और अपनी नेमत के तौर पर बयान किया। एक आम आदमी, हम जो है, इंसान जो है, अगर वो अपनी नेमतों को शुमार करवाए, अपनी एहसानात को बयान करे, तो हम ऐसे वैसे नेमत और ऐसे वैसे एहसान को बयान नहीं करते हैं। हमने जो बड़ा एहसान किया है उसको लोगों के सामने बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने एहसानात में तालीम को बयान किया। ये चीज़ हमें बतलाती है कि तालीम और एजुकेशन ये बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ा एहसान है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि तुम दुआ करो कि ए मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इमाम कुर्तुबी लिखते हैं तफसीर कुर्तुबी के अंदर कि अगर इल्म से, तालीम से, एजुकेशन से बढ़कर अगर कोई नेमत होती तो अल्लाह ताला अपने नबी को उसकी दुआ करने का हुक्म देते, लेकिन तालीम के लिए दुआ करने का हुक्म दिया। ये इस बात की दलील है कि तालीम बहुत बड़ी नेमत है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमें इस बात की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमारा मजहब इस्लाम और कुरान करीम और हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें तालीम और एजुकेशन की इतनी अहमियत बतलाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम मैदान के अंदर देखें कि हमारे समाज के अंदर तालीम के एतबार से सबसे ज़्यादा पसमानदगी पाई जाती है। 2005 के अंदर हुकूमत की जानिब